रोहन नाम के एक गरीब किसान के पास गाय थी। रोहन को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। रोहन सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वो गाय रोहन को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे रोहन के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रोहन की पत्नी रोहन से बोलती है, सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं, उतना तो ये हमें दूध नहीं देती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जी, मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो रोशनी? ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो। देखिए, मैं जानती हूँ कि पशु जब घर में हो तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर यह दूध देना भी बंद कर देगी ना पूजा, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी, तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है, ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है और आंगन में बंधी हुई गाय रोहन और रोशनी की सारी बातें सुनकर खुद से बोलती है, मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वह मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार हैं, वैसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगी।
Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, like a roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. यहीं कहीं होगी, जाकर देख लीजिए।
रोहन गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती है। रोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, ना जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था, और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है। पता नहीं किस हाल में होगी। देखिए, आप इतना रोइए मत। हो सकता है कि वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए चली गई मौका मिलते ही। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वह आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए। अब अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर रोशनी को बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसी शिवा द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वह सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। रोहन की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ शिवा रोहन की गाय पर एक नया रंग कर देता है ताकि किसी को भी रोहन की गाय पहचान में न आए, और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, गांव वालों का अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं रोहन के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। शिवा मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं रोहन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से रोहन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और ऐसे ही एक दिन रोशनी रोहन से बोलती है, जी सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस आते हैं ना, उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे। मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। रोहन और रोशनी ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का जमींदार आता है और रामू से बोलता है, अरे रोहन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसा मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो रोहन, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन खेतों की रखवाली करो, वहां पर खेती करो, और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। अजी सब कर रहे हैं, हाँ कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका थोड़ी ना मिलेगा जी। ठीक है साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगे ना? वो दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है। क्यों, तुम्हारी गाय कहाँ चली गई? बेच दिया क्या तुमने उसे? नहीं, बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं मिल जाती तब तक मैं हाथों से ही खेत की जुताई कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते रहेंगे। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन रोहन जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि जमींदार के बहुत सारे खेत थे और रोहन खेती करने में बहुत अच्छा था, तो जाहिर सी बात थी कि अब खेती से रोहन को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था। रोहन दिन रात एक करके खेतों पर मेहनत कर रहा था। ऐसे ही एक दिन रोहन जब जमींदार के खेतों पर काम कर रहा होता है, तब शिवा उसकी गाय को लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन रोहन रंग बदलने की वजह से अपनी गाय को पहचान नहीं पाता है और शिवा बोलता है, क्या बात है रामू, जमींदार जी की खेत खरीद लिए क्या तुमने? अरे नहीं, बस मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बात है, खेती में तो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। गांव के और भी लोग बहुत अच्छे हैं, पर जमींदार ने बस तुझे ही कहा यहाँ पर खेती करने के लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? यह तो जमींदार जी की इच्छा है, उनकी मर्जी, वे किससे काम करवाते हैं। नहीं वाला लाभ तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे देगा, लेकिन मैं तुम्हें ये सारा लाभ लेने नहीं दूंगा। वैसे ये गाय किसकी है? अरे ये तो मेरी गाय है, 2 दिन पहले ही खरीद कर लाया हूँ। अच्छा, इसे देखकर मुझे अपनी गाय की याद आ गई। पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई है। उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये तो मेरी गाय है। अच्छा, चलो चलता हूँ मैं यहाँ से। शिवा वहाँ से चला जाता है और अब रोहन को जमींदार के खेतों पर खेती करता देखकर शिवा को रोहन से और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। शिवा खुद से बोलता है,
नहीं नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे जल्दी इस रोहन का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह फसल तो मैं बर्बाद करके रहूंगा और फिर जमींदार रोहन को काम से निकाल देंगे और बदले में सारा काम मुझे दे देंगे और मैं उसे खेती से बहुत सारा लाभ दूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। शिवा की यह सारी बातें गाय सुन रही होती है, जो अपने आप से बोलती है, कितना दुष्ट है यह शिवा। पहले यह मुझे रोहन के घर से ले आया और अब रोहन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भगवान, काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं बोलकर सबको बता देती कि शिवा की असलियत क्या है। पर मैं क्या करूं, मैं कैसे रोहन की मदद करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते चले जाते हैं। रोहन दिन रात जमींदार के खेतों पर खूब मेहनत करता और आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है, यानी कि रोहन द्वारा लगाई हुई फसल पककर तैयार हो जाती है और अब उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। मनीष रोहन द्वारा की हुई खेती को देखकर बहुत खुश होता है और रोहन को शाबाशी देते हुए बोलता है, बहुत अच्छी खेती की है तुमने, इस बार तो बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ अब मेरे बाकी के खेतों का काम भी तुम ही संभालो। वैसे भी तुमसे ज्यादा वफादार और बढ़िया आदमी मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। जी ठीक है साहब, जैसा आप चाहे। था वो खुद से बोलता है। वक्त आ गया है, अब मैं रोहन की गाय के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी रोहन की मेहनत को बर्बाद कर दूंगा। ये फसल तो आज रात में इतने बुरे तरीके से खराब कर दूंगा ना कि सुबह जब जमींदार इस खेत का ऐसा हाल देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा रोहन पर निकाल देगा और फिर वह रोहन को काम से भी निकाल देगा और ऐसे में मैं वहां पर पहुंच और रोहन के हाथों से सारा काम छीनकर अपने नाम कर लूंगा। ऐसे ही उस रात शिवा रोहन की गाय को लेकर जमींदार के खेतों में जाता है। और उस गाय पर बैठकर फसल को रौंदने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन की गाय समझदारियों लेकिन गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है और खेतों पर चलने को तैयार नहीं होती। शिवा को गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ में पड़े हुए डंडे से रोहन की गाय की पिटाई करना शुरू कर देता है। रोहन की गाय पूरी तरीके से दर्द में कहने लगती है और वहां से भाग जाती है। शिवा गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते गाय रोहन के घर पहुंच जाती है और जोर जोर से आवाज करने लगती है। तभी रोहन और रोशनी निकलकर घर से बाहर आते हैं और रोहन गाय को देखकर बोलता है, अरे तुम तो शिवा की गाय हो ना, तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? गाय घर के भीतर आती है। जिस जगह रोहन अपनी गाय को नहलाया करता था उस जगह जाकर खड़ी हो जाती है, जहां पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था। गाय उसमें बैठ जाती है, जिस वजह से उस पर लगाया हुआ काला रंग उतरकर बहने लगता है। यह देखकर रोहन हैरान हो जाता है। इसके बाद रोहन एक के बाद एक बाल्टी भरकर उस गाय पर पानी डालता है और आखिरकार रोहन को अपनी गाय की पहचान हो जाती। क्या बात है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई परेशानी में है? रोहन की यह बात सुनकर गाय अपना सर हाँ करके हिलाने लगती है, जिसका बाद गाय रोहन को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंचती है, जहां पर शिवा हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने वाला था। तभी गाय जल्दी से भागकर जाती है और शिवा पर वार करती है, जिससे शिवा के हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है और रोहन बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो शिवा? क्या जानते भी हो कि फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यह गाय तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? इसका काला रंग उतर कैसे गया? इसका मतलब कि मेरी गाय पर काला रंग तुमने किया था?
इतने दिनों से तुम मेरी गाय को लेकर घूम रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। सच बताओ शिवा की पूरी बात क्या है, वरना मैं अभी अभी जमींदार को बुलाकर तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। जमींदार के डर से शिवा रोहन को सारी बातें बता देता है, किस तरह उसने उसकी गाय को घर से निकाला और रोशनी ने उसमें उसका पूरा साथ दिया। गुस्से में बौखलाया हुआ रोहन शिवा और अपनी गाय के साथ घर पहुंचता है, जहां रोशनी रोहन का इंतजार कर रही होती है। रोहन रोशनी की गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है और उसे सारी बात बताता है और बोलता है, रोशनी, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, ये गाय मेरे लिए मेरी संतान के बराबर है और तुमने मेरी संतान को चंद पैसों के लिए इस लालची आदमी को बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं बहक गई थी। अरे सीखो कुछ, इस बेजुबान गाय से ये कितनी वफादार है, ना जाने कितना कष्ट सहा होगा इसने शिवा के हाथों, लेकिन फिर भी इसने जमींदार के खेतों को बर्बाद करने में शिवा का साथ नहीं दिया। और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। लेकिन इस गाय ने कष्ट सहने के बाद भी मेरे साथ वफादारी की। बोलो, क्या अभी भी मेरा इस गाय से प्रेम करना गलत है? रोहन की यह बात सुनकर रोशनी का सर शर्म से झुक जाता है और शिवा भी वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद फिर कभी भी रोहन को या उसकी गाय को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता। सारी घटना के बाद रोशनी भी गाय की वफादारी से भली भांति परिचित हो जाती है और अब रोहन की तरह ही रोशनी भी गाय को अपनी संतान बराबर ही प्यार करने लगती है। आधी रात का समय था। अपने साड़ी के पल्ले में एक छोटी सी मिट्टी की गाय को छुपा चुपचाप चलती जा रही थी। पूर्णिमा की रात की वजह से चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अपने कदम की रफ्तार को धीरे धीरे और तेज करती जा रही थी। चलते चलते आश्रम में पहुंच जाती है। जहां पर एक साधु बाबा हवन कुंड के आगे बैठकर तेज तेज मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं। वह जल्दी से अपनी मिट्टी की गाय को हवन कुंड के एक तरफ रखती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, आपने जैसा जैसा कहा था साधु बाबा, मैंने सब वैसा वैसा किया। अब इस मिट्टी की गाय का क्या करना है, आप ही मुझे बताएं। थोड़ा सा और धैर्य रखो। अब हम इस मिट्टी की गाय को अब एक चमत्कारी गाय में बदल देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। किसी गांव में रीता नाम की एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी महिला रहा करती थी। रीता के आगे पीछे उसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारी को खुद ही इधर उधर लोगों के घरों में काम काज करके अपना गुजारा करना पड़ रहा था। कभी उसे खाना मिल जाता तो कभी उसे भूखे ही सोना पड़ता था, पर इस बात की शिकायत वह कभी भी किसी से नहीं किया करती थी। हर
और बिमला कुछ पैसे और थोड़ा सा खाना रीता को देते हुए बोलती है। यो लो तुम्हारा 2 वक्त का खाना और यह पैसे। वैसे इतना अच्छा काम तो तुमने किया नहीं था काकी, पर कोई बात नहीं, रख। रीता को अपने साथ एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ ले जाता है, जहाँ पर नीरज भी काम किया करता था। दरअसल नीरज जमींदार के खेतों में खेतीबाड़ी उगाने और फसल की रखवाली करने का कार्य किया करता था। नीरज जमींदार से कहकर रीता को भी अब अपने साथ खेतों में काम पर रख लेता है। अब रीता नीरज के साथ मिलकर खेतों में फसल और रखवाली का काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन नीरज, रीता